नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। केपी न्यूज 24/7 के एसोसिएट एडिटर समीर खान ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के कुलपति दयानंद अक्सर से मुलाकात की। शिक्षा के संबंध में उनकी योजनाओं के बारे में हासिल की जानकारी। बिहार विधानसभा में मारपीट की घटना पर तेजस्वी यादव का स्पीकर को लेटर। आगामी सत्र में आने से डर रहे विधायक। राहुल गांधी ने जोरदार तुकबंदी कर पीएम मोदी पर बोला हमला। लिखा, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। सोनिया से मिले कमलनाथ। यूपी में गठबंधन पर हुई चर्चा। एसपी बीएसपी पर निगाहें। अब समाचार विस्तार से। इंसान जब कुछ कर गुजरने और अपनी कोशिश और कड़ी मेहनत और शिक्षा के जरिए कुछ बड़ा करने की ठान ले तो सफलता उसके कदम चूमने लगती है। वो सफलता की मंजिल तक पहुंच जाता है और अपनी योग्यता से अपना निशाना हासिल कर लेता है और सफलता की मंजिल पर पहुंचकर ही कदम लेता है। उसकी कड़ी मेहनत से ऊंचे मुकाम तक पहुंचने पर खुद सफलता भी उस कामयाब व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगती है। ऐसी ही योग्यता रखने वाले एक इंसान है गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा के कुलपति दयानंद अक्सर, जिनके जीवन की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। दरअसल दयानंद अक्सर इसी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के छात्र रहे और 3 वर्ष तक वह रजिस्ट्रार के पोस्ट पर रहे और अब वह इसी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के कुलपति बन गए हैं। इनकी सफलता की ये कहानी छात्रों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपके अपने टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7 के एसोसिएट एडिटर समीर खान ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी पहुंचकर कुलपति दयानंद अक्सर से मुलाकात की और भविष्य में उनकी ओर से शिक्षा के क्या क्या योजनाएं हैं इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर केपी न्यूज 24/7 के गुलबर्गा से संवाददाता मसूद आलम और कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए कुलपति दयानंद अक्सर ने एक छात्र से लेकर कुलपति बनने के अपने सफर का विवरण किया। Tell about mine. Let me thank KP News for this opportunity. I wish the university can give a lot of information to the stakeholders, public and the students in particular as far as Gulbarga University is considered. I am very happy and proud to say that being a student of this university, right from my postgraduate department and the PhD program, I have become the Vice Chancellor of this university. Before coming to the chair of the Vice Chancellor, I served as Registrar of the University also for about 3 years. Naturally, I am very proud. This is a great opportunity the government has given to me to serve this university. Being the student of this university, it's my opportunity to serve the students in particular and the service to the education sector in general as far as higher education is considered. Having known all the issues of the Gulbarga University, I think I can do much better with the support of the present staff, students and the important bodies like Academic Council and Syndicate of Gulbarga University. ये जो विश्वविद्यालय चलाने के लिए बहुत सारे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, तो फिलहाल बहुत सारे स्टाफ की कमी है, तो इसे आप कैसा मैनेज कर रहे हैं? सही है, आप जो बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ तो कमी है, मगर फिर भी जो भी स्टाफ रेगुलर स्टाफ कमी है उस जगह पे we have lot of the people who have been appointed both in teaching and non-teaching. In teaching, if we take, we have guest faculty. In non-teaching, if we take, we have the people under the outsourcing agencies. However, with the guest faculty and the non-teaching staff under outsourcing resources, university is managing very well as far as its academic as well as administrative activities are concerned. It is true that government has to take a special attention as far as the appointment of both teaching and non-teaching staff of Gulbarga University. Particularly, this Gulbarga University, which is being covered under 371J, it have a special attraction from the government and for which Chancellor has already consented. Hope in the coming near few days the government will permit the university and initiate the process of appointment of both teaching and non-teaching. Of course, with the regular staff of the teaching and non-teaching, the university administration and academic activities can be taken to a greater heights. Beginning of the November. ये थे
गुलबर्गा विश्वविद्यालय गुलबर्गा कुलपति दयानंद अक्सर सर, इन्होंने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं इस यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने के लिए और स्टूडेंट के बेहतरी के लिए। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितने कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन साबिर खान के साथ मशहूद आलम, केपी न्यूज़, कलबुर्गी। कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले के सपना ग्राउंड में सरकारी पंजीकृत श्रमिकों के बीच राशन किट वितरित किए गए। राशन किट वितरण के दौरान लोगों की लंबी कतारें देखी गई। इस लंबी लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा हालात में आम आदमी 2 वक्त का खाना खाने को कितना मजबूर है। इस दौरान विभिन्न गाँवों और बस्तियों के लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कतारों में खड़े जरूरतमंदों को देखकर ही कोरोना और लॉकडाउन के बाद आम लोगों के बीच 2 रोटी की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार विधानसभा के पिछले सत्र में विधायकों के साथ हुई कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के दोषी अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं होने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कार्रवाई नहीं करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा पत्र लिखा है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में मार्च माह में विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया था। बाद में सदन के अंदर पहली बार पुलिस ने घुसकर विधायकों को घसीटते हुए विधानसभा से बाहर निकाला था। तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित इस लेटर में लिखा है, बिहार विधानसभा परिसर में 23 मार्च 2021 को हुई शर्मनाक, अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में 3 अप्रैल को आपको पत्र लिखा था। इसमें घटना में संलिप्त पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई के संबंध में आग्रह किया था। पत्र में निम्न बिंदुओं पर जाँच का आदेश देने का आग्रह किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने देश को कठिन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ राहुल लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हैं। उन्होंने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की कमी, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में तुकबंदी के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। ट्वीट में हालांकि किसी का नाम नहीं है, लेकिन इसकी भाषा से स्पष्ट है कि राहुल का निशाना PM और उनकी सरकार पर ही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। खास बात यह है कि इस बैठक में यूपी में सक्रिय भूमिका निभा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। बीते मंगलवार से ही कांग्रेस में बड़ी बैठकों का दौर जारी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कमलनाथ को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है। कांग्रेस राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। वहीं दोनों पार्टियों से कमलनाथ के संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस और सपा एक साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन तब गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से मांग की है कि मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। केजरीवाल ने कहा, इससे पूरे देश को खुशी होगी। पूरा देश उन्हें चाहता है। पूरे देश को सुंदरलाल बहुगुणा जी पर गर्व है। दिल्ली विधानसभा में सुंदरलाल बहुगुणा के पोर्ट्रेट का अनावरण करते हुए CM केजरीवाल ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी को भारत रत्न दिलाने के लिए हम PM मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। उत्तराखंड के निवासी सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद रहे हैं। उन्हें दूसरे सर्वोच्च अलंकरण पद्म विभूषण से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इस साल 21 मई को सुंदरलाल बहुगुणा का देहांत हो गया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक गुरुवार सुबह पुणे में महाराष्ट्र के निकट रिक्टर पैमाने पर 3.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पुणे, महाराष्ट्र से 132 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 7:23 से सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में आया।
गुजरात में दाहोद जिले के धानपुर तालुका के खजूरी गांव में एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रखने के आरोप में 23 वर्षीय आदिवासी महिला को उसके पति और गांव वालों ने सजा देते हुए कथित तौर पर उसे निर्वस्त्र कर घुमाया। पुलिस ने बताया कि बुधवार को इस मामले में कम से कम 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य महिला आयोग ने भी इस चौंकाने वाली घटना का संज्ञान लिया है और जिला पुलिस से रिपोर्ट्स तलब की है। धानपुर पुलिस थाने के उप निरीक्षक BM पटेल ने बताया कि इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। हेलो। हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का कोई मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुमको पूरे सर्वर नंबर मालूम है। आओ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्युइन है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जनों को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे। क्या है सही है, क्या गलत है, समझ में नहीं आ रहा। 1000 कंधों में नहीं जाना। KP News 24/7 हिंदी चैनल है। हाँ, सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी KP News 24/7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और KP News 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने KP News 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित 10 पार्टियों के साथ मजबूत गठबंधन कर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया था। हालांकि OP राजभर के इस गठबंधन की गांठ असदुद्दीन ओवैसी के बहराइच में जाकर गाजियों की मजार पर चादर पोशी करने के बाद से ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल ओवैसी की चादरपोशी के बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने OP राजभर से सवाल किया था कि वो राजनीतिक लाभ के लिए उनके पूर्वजों से जंग करने वाले और उन्हें शहीद करने वाले गाजियों की कब्रों पर चादरपोशी करने वालों के साथ क्या अब राजभर उनके पूर्वजों को शहीद करने वालों के साथ गठबंधन करेंगे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान अभिनेता सोनू सूद की फिल्म के एक सीन में पिटना बर्दाश्त नहीं कर पाने पर एक युवा लड़के ने टीवी तोड़ दिया, जिसने कई लोगों की मदद करके उनके दिलों में जगह बनाई। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नियालकल गांव में एक लड़के ने टीवी तोड़ दिया। उन्होंने घटनास्थल की ओर देखा और पूछा, सबकी मदद करने वाले सोनू सूद को कोरोना के समय क्यों पीटा जा रहा है। कई लोग सोनू सूद की मानवीय करुणा की भावना से प्रभावित है। खासकर 2 तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उनके एक प्रशंसक ने तेलंगाना में एक मंदिर भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण करने के बाद BA तृतीय वर्ष की परीक्षा देने पहुंची 21 वर्षीय छात्रा आरती तिवारी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही है।
जिले के प्रथम नागरिक के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली आरती तिवारी अपने सहपाठियों के बीच भी कौतूहल का विषय रही। परीक्षा देने पहुंची आरती तिवारी को महाविद्यालय प्रशासन की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की बधाई दी गई। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तालिबान ने अब उत्तरी अफगानिस्तान के एक सुदूर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद तालिबान ने अपना पहला आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि महिलाएं किसी पुरुष के साथ बाजार नहीं जा सकती, पुरुष दाढ़ी नहीं काट सकते और ना ही स्मोकिंग कर सकते हैं। कहा गया है कि इस आदेश को ना मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आमिर खान और किरण राव ने कुछ दिनों पहले तलाक की खबर देकर फैंस को चौंका दिया था। शादी के 15 साल बाद दोनों अलग हो गए हैं। हालांकि दोनों ने ये भी बताया है कि वह जिन भी प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर रहे थे या करेंगे वो मिलकर करेंगे। हाल ही में फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए आमिर खान और किरण लद्दाख पहुंचे थे। शूट के बीच ब्रेक लेकर आमिर और किरण ने वहां के लोगों के साथ खूब मस्ती की। दोनों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। दोनों का एक वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों डांस कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज 24/7 के एसोसिएट एडिटर समीर खान ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के कुलपति दयानंद अक्सर से मुलाकात की। शिक्षा के संबंध में उनकी योजनाओं के बारे में हासिल की जानकारी। बिहार विधानसभा में मारपीट की घटना पर तेजस्वी यादव का स्पीकर को लेटर। आगामी सत्र में आने से डर रहे विधायक। राहुल गांधी ने जोरदार तुकबंदी कर पीएम मोदी पर बोला हमला। लिखा, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। सोनिया से मिले कमलनाथ। यूपी में गठबंधन पर हुई चर्चा। एसपी बीएसपी पर निगाहें। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।